إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام کی حضور ناز میں جھوم جھوم کر گلہائے عقیدت پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب ذرا جھوم کر خوش ہو کر آقا کریم کے حضور ناز درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے، کیونکہ ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں۔ جتنا آپ اپنے لبوں کو حرکت دیں گے اتنا ہی مرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ الدعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے محترم چچا شاہ سوار بھائی محمد سلیم بھائی محمد یوسف، ان کے والد محترم کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ خالق کائنات آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے ان کی زندگی کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام کا دامن شفاعت، دامن کرم نصیب فرمائے۔ حضور والا محفل چونکہ ایصال ثواب کی ہے، اس محفل پاک میں اگر ایصال ثواب کے موضوع پر بحث کی جائے تب بھی بات ٹھیک ہے، اگر باپ کی شان بیان کی جائے تب بھی بات ٹھیک ہے، آخرت کی یاد دلائی جائے تو یہ بہت ہی احسن عمل ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک بھولا ہوا سبق ہے جو ہمیں بار بار جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ بھولا ہوا سبق کیسے ہے؟ آج ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، جب کسی میت کو دیکھتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، کفن دفن میں بھی ساتھ شریک ہوتے ہیں، مٹی بھی ڈالتے ہیں، وہاں پر بڑے ہم فلاسفر بن کر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن یہیں آ جانا ہے، ہر ایک نے یہیں آ جانا ہے، مر جانا ہے، دنیا نے کیا رکھا ہے، لیکن یوں ہی مٹی ڈال کر واپس لوٹتے ہیں، سارا ہم بھول جاتے ہیں، وہیں ہم چھوڑ آتے ہیں۔ جتنے بڑے ہم فلاسفر بنے تھے، ہر چیز کو وہیں چھوڑ آتے ہیں، اسی طرح دنیا کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، آ کر اسی طرح بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ سارا ہمارا زبانی اقرار ہے، اگر دل سے ہم تصدیق کرتے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے، اگر دل سے مانتے تو جب ہم وہاں سے پلٹیں تو ہماری زندگی بدل چکی ہو، ہماری زندگی کے نشیب و فراز جو شب و روز ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہوں، وہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ڈھل چکے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اقرار نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر واقعتاً ہم نے مرنا ہے، کیا ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ موت کو بھول جائیں گے۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے، یا رسول اللہ کیا ان کے سامنے لوگ مریں گے نہیں؟ کیا وہ جنازوں کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ کریں گے، اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیں گے، کفن دفن کا انتظام بھی کریں گے، جنازے بھی پڑھیں گے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے، لیکن پھر بھی وہ موت کو بھولے ہوں گے۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پھر آدمی موت کو بھول کیسے سکتا ہے؟ جب جنازہ کو بھی دیکھا، جنازہ پڑھا بھی، پھر قبر میں بھی جنازے میت کو رکھا، پھر مٹی بھی ڈالی، موت کو کیسے بھول گئے؟ تو آقا کریم
करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत होगी। जब उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत होगी, वो मौत को भुला बैठे होंगे, वो मौत को भूले हुए होंगे। मौत कितनी बड़ी हकीकत है, कितनी बड़ी सच्चाई का नाम है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में एक हकायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक बादशाह था और एक उसका वजीर था। वजीर के दिल में हर वक्त ये बात मचलती रहती कि काश बादशाह मुझे 10वां हिस्सा सल्तनत का मुझे दे दे, चंद दिनों के लिए मैं भी बादशाहत का मजा ले लूं। हकायत बयान करने का उनका मकसद ये होता है कि आखिर में वो सबक बड़ा शानदार देते हैं। बात मुकम्मल करने के बाद सबक बड़ा शानदार और आलीशान होता है। वो फरमाते हैं कि उसके दिल में हर वक्त ये बात मचलती रहती। जब बात मचलती तो एक दिन बादशाह को ख्याल आया। बादशाह ने कहा कि ऐ वजीर, मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत देता हूँ, तू मेरी आधी सल्तनत का आज के बाद बादशाह है। वो वजीर दिल में बड़ा खुश हुआ कि मैं तो 10वां हिस्सा सोच रहा था, बादशाह ने तो कमाल कर दिया, आधी सल्तनत मिल रही है। लेकिन साथ ही बादशाह ने कहा कि इसके लिए एक शर्त है, मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर जवाब दे लिया तो फिर तुझे सल्तनत मिल जाएगी, जवाब न दे सका तो फिर अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार रहना, फिर मैं तुझको कत्ल करवा दूंगा। क्योंकि बादशाह होता है, कौन उसको पूछने वाला है। अब वजीर उसका हुक्म पाकर सवालों के जवाब की तलाश में निकल पड़ता है। वो सवाल कौन से हैं वो जरा सुनिए। पहला सवाल ये है कि सबसे बड़ी सच्चाई का नाम क्या है और सबसे बड़े फरेब का नाम क्या है। और तीसरा सवाल है कि इंसान की कमजोरी क्या है। अब वो तीनों सवालों का जवाब तलाश करने के लिए वो मुल्क के करिया गांव बस्ती के अहले अरबाबो दानिशो फिक्र के पास जाता है, वह अहले अकल के पास जाता है, वो अहले इल्म लोगों के पास जाता है, लेकिन कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। जब 30वां दिन आता है, बादशाह के महल की तरफ जा रहा होता है, इस हाल में जा रहा है कि उसका जो सरकारी लिबास फट चुका है, जूते फट चुके हैं, क्योंकि वो पूरा 1 महीना पूरे मुल्क की खाक शान चुका होता है। और वो हर एक के पास जाकर अपने सवाल रख कर मायूस होकर अब वापस जब जा रहा है तो एक कुटिया आती है, झोंपड़ी आती है। वहाँ एक फकीर बैठा है। फकीर किस हाल में बैठा है कि खुद तो रोटी खा रहा है एक आम से बर्तन में, रोटी के खुश्क टुकड़ों को पानी में भिगोकर खा रहा है, लेकिन बड़े आलीशान बर्तन में, बड़े ही नफीस तरीन बर्तन में उसका कुत्ता दूध पी रहा है उस फकीर का। जब वजीर वहाँ पहुँचता है तो फकीर की नजर पड़ती है। फकीर कहता है तू सही जगह पर पहुँच चुका है, मैं तेरे सवालों का जवाब देता हूँ, तेरी जान बख्शी हो जाएगी। अब वो बड़ा खुश होता है वजीर। अब उसने कहा कि बता मेरे सवालों के जवाब क्या है। तो अब फकीर कहता है कि तेरे पहले सवाल का जवाब ये है कि सबसे बड़ी सच्चाई का नाम है मौत, इससे बड़ी और कोई सच्चाई नहीं हो सकती। दूसरा उसने कहा सबसे बड़े धोखे का नाम है जिंदगी, जिस पर हम आज बहुत मान कर रहे हैं। जब जे हम 2 सांसें ले रहे हैं तो हम पूरी दुनिया के हीरो बने हुए रहे, साथ वाले को कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन इस सांस का एक लम्हे पर का भरोसा नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम मौत को कितना करीब पाते हो। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम एक नमाज पढ़कर जब घरों को जा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता हम दूसरी नमाज के लिए आए या ना आए। हमने मौत को इतना करीब समझा है कि दूसरी नमाज के लिए हम सोचते हैं पता नहीं टाइम मिले या ना मिले, पता नहीं किस मोड़ पे जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए, सांसों की माला टूट जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुमने तो बड़ी लंबी
लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं, बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मौत को कितना करीब समझते हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, मेरे सहाबा, एक सांस जो अंदर चला गया वो पता नहीं बाहर भी वापस हवा आएगी कि नहीं आएगी। मैंने मौत को इतना करीब समझा हुआ है। मौत इतनी बड़ी सच्चाई का नाम है और जिंदगी इतने बड़े धोखे का नाम है। पता नहीं किस मोड़ पर ये धोखा दे जाए, किस मोड़ पर हमें ये अकेला छोड़ जाए, किस मोड़ पर ये जिंदगी की शाम आखिरी शाम हो जाए। तो जब ये दोनों सवालों के जवाब मिल चुके तो जो वजीर था बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि अब शायद मेरी जिंदगी बच जाएगी, मुझे आधी सल्तनत भी मिल जाएगी। लेकिन आखिरी सवाल ने हैरान करके रख दिया, उसको अजीब झटका लगा। और जब आखिरी सवाल की बारी आती है तो फकीर कहता है कि ए वजीर, मैं वो तुझे आखिरी सवाल मुफ्त में नहीं बताऊंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो वो वजीर मरता क्या न करता, महीने का आखिरी दिन है, या गर्दन जाती है या आधी सल्तनत मिलती है। उसने कहा, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, तेरी हर जो आरज़ू है वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तू बतला क्या तेरी आरज़ू है, क्या तमन्ना है, क्या तू मुझसे चाहता है? तो उसने कुत्ते को हटाया, प्याला दूध वाला उठाया और फकीर वजीर से कहा कि पहले इसको पी, जब तू पी लेगा तो फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। अब उसने इधर उधर देखा, कहने लगा, नहीं ये मैं नहीं पीऊंगा, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा। तो वो कहने लगा, फकीर कहता है, जा फिर अपनी गर्दन कटवा, मैं तेरे सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। वो कहने लगा कि मैं नहीं पी सकता, वो कहने लगा मैं जवाब नहीं दे सकता। अब वजीर के सामने क्या चीज़ थी? वजीर के सामने था कि अगर मैं पी लेता हूँ मेरी जिंदगी भी बच जाएगी, सल्तनत भी मिल जाएगी। अगर मैं नहीं पीता तो जाते ही मेरा जो गर्दन है वो काट के रख देगा बादशाह, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब उसने आसपास देखा, सोचा कि कोई देखने वाला तो है नहीं, किसी को क्या खबर, बाद में तौबा तायब कर लूंगा, बाद में पाक साफ हो जाऊंगा। उसने इधर उधर देखा, नजर दौड़ाई, कोई नजर ना आया। जल्दी जल्दी उसने दूध का प्याला अपने अंदर ले लिया, पी लिया। जब दूध का प्याला पी लिया तो अब फकीर कहका लगा कर हंसता है। वो कहता है कि अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब तूने खुद तलाश कर लिया है, तुझे तेरा जवाब मिल चुका है। वो बड़ा हैरान हुआ, कैसे मिल चुका है? कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही गर्ज है, यही दुनिया की मोहब्बत है, जिसके लिए तूने आज कुत्ते का जूठा पिया है ताकि मेरी जिंदगी बच जाए, मुझे सल्तनत मिल जाए। जब तेरी जिंदगी बच जाएगी, सल्तनत मिल जाएगी, फिर तुझे कुत्ते का जूठा पीने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, हिरस में तू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तेरे कदम रुकेंगे नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया का हरीस तरीन तू कुत्ता बन के रह जाएगा, तू दुनिया का कुत्ता बनकर रह जाएगा। मेरी मान आज के बाद इससे जान छड़वा ले, जिस तरह के मैं भी यही सवालों के जवाब लेने के लिए निकला था। इसीलिए मैंने तुझे पहचान लिया था कि बादशाह ने आज तेरा इम्तिहान लेने के लिए भेज दिया है। जब मैंने दुनिया की गरज से बेनियाज हो गया, जब दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया, तो मुझे फिर इससे कोई गरज नहीं थी कि मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, कुत्ता दूध पी रहा है, मुझे फिर इससे कोई गरज नहीं थी मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे पास तन के लिए कपड़ा है भी कि नहीं है। दुनिया की मोहब्बत को अपने सीने से निकाल दे, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही इंसान की कमजोरी फिर इंसान को इंसान नहीं रहने देती, इंसान को फिर हैवान से भी बदतर बना देती है, यही कमजोरी। तो इसीलिए आखिर में जो सबक दिया मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, वो यही सबक दिया है कि ए दुनिया वालों, इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार न हो जाना, वरना ये दुनिया तुझे जलील करके रख देगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया के पीछे भागता है दीन को छोड़कर,
दुनिया भी उसके हाथ नहीं आती, लेकिन वो दुनिया भी उसको जलील करके फिर रख देती है। लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत से मुंह मोड़ लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया भी बेहतर बना देता है, आखिरत भी बेहतर बना देता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था जिससे बदबू आ रही थी। आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ रुक जाते हैं, सहाबा से पूछते हैं, मेरे सहाबा क्या इसको कोई खरीदार है, इसका कोई खरीदेगा इसको? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कौन इसको खरीद सकता है, इसको तो कोई नहीं खरीदेगा, ये तो मुर्दार है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, दुनिया इससे भी ज्यादा मुर्दार है, दुनिया इससे भी ज्यादा मुर्दार है, और जो दुनिया के खरीदार हैं वो कुत्तों से बदतर हैं, वो कुत्तों से भी बदतर हैं। ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए। हाँ, कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के मालो सबाब कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल में डालना ये गुनाह है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि दुनिया का माल कमाना इस नीयत से कि अपने अहलो अयाल का हलाल तरीके से पेट पाल सकूं, किसी गरीब की मदद कर सकूं, ये हराम नहीं, बल्कि ये तो ऐने इस्लाम है, ये तो इबादत है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत में दीन इस्लाम को पीछे छोड़ देना, दुनिया की मोहब्बत में जायज़ो नाजायज़ हर काम करते जाना, ये हराम है। और इस दुनिया में हम बुरी तरह आकर फंस चुके हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अगर इस दुनिया की कदर, इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नज़दीक मक्खी के पर के बराबर भी होती, मक्खी का पर अब क्या चीज़ है, दुनिया की जो कदर है, जो दुनिया की कदर मंजिलत है अल्लाह के यहाँ, अगर मक्खी के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिर को कभी पानी का घूंट तक न देता। ये जो दुनिया है, ये दुनिया की आज़ाइश है, ये काफिरों के लिए है, और मोमनों के लिए तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया जो है काफिर के लिए जन्नत है और मोमन के लिए कैद खाना है। और फिर जब हम इस दुनिया में आते हैं तो फिर हम अपने आप कोई काम करने के पाबंद नहीं, हम पाबंद हैं तो अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं। क्योंकि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस जहान में आकर रहकर हमने अपनी ज़िंदगी को आका करीम की ज़िंदगी के मुताबिक ढालना है। इस जहां में आकर हमने अपनी ज़िंदगियों के, हम रोज़ाना उठते जनाजे देखते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमको फट्टे पे डाल दिया जाएगा, नहलाया जा रहा होगा, मस्जिद के मनारे से ऐलान हो रहा होगा कि फलां साहिब का इंतकाल हो चुका है, अब उसका इतने बजे जनाजा है। ज़रा गौर तो करो कि एक ना एक दिन वो हम पर आने वाला है। जब वो दिन आने वाला है, मस्ट है, पक्की बात है, तो फिर हम किस गम में इस दुनिया से दिल लगाए बैठे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मजबूर कर रही है इस दुनिया में दिल लगाने को? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की मोहब्बत की मिसाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं दी कि एक आदमी शेर के डर से भागा जा रहा था कि आगे उसको एक दरख्त नजर आया, वो दरख्त पर चढ़ जाता है। जब वो दरख्त पर चढ़ गया तो फिर उसने क्या खौफनाक मंजर देखा कि शेर जो है वो दरख्त के नीचे आकर रुक जाता है। दरख्त के नीचे उसकी नज़र पड़ती है तो दरख्त के नीचे बहुत बड़ा गड़ा है, गड़े में एक अजदहा सांप मुंह खोले खड़ा है। ये इतने खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने थे। तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं दरख्त के ऊपर बैठा हूँ, यहीं पे बैठा रहूँगा। लेकिन इससे भी खौफनाक मंजर और भी उसकी आंखों के सामने आ गया। जब दरख्त के तने की तरफ देखता है, दो स्याह रंग के चूहे उसको जल्दी जल्दी कुतर रहे हैं, एक स्याह रंग का एक सफ़ेद रंग का, दो चूहे जल्दी जल्दी कुतर रहे हैं। अब उसने ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख लिए। जब खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखे तो इत्तफाकन उसकी नज़र ऊपर की शाख पर पड़ती है, वहाँ शहद लगा हुआ था। अब वो चूहों के कुतरने को भी भूल गया, कुएं को भी भूल गया,
وہ شیر کھڑا تھا اس کو بھی بھول گیا، اژدہا کو بھی بھول گیا، وہ شہد کھانے میں مگن ہو گیا، اتنا مست ہوا کہ چوہوں نے اپنا کام کر دیا، درخت دھڑم سے نیچے گرا، ادھر شیر نے اپنا لقمہ بنایا، باقی کو کنویں میں ڈال دیا، وہ اژدہے نے نگل لیا۔ آقا کریم نے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو شیر ہے وہ موت ہے جو انسان کا پیچھا کر رہی ہے، اور درخت وہ جو زندگی ہے جس کی شاخوں پہ انسان بیٹھا ہے، اور پتہ نہیں کب چوہے دن اور رات اس کے ختم ہو جائیں اور اس کی زندگی کا درخت دھڑم سے نیچے گر جائے، اور جو کنواں ہے وہ اس کی قبر ہے، جو اژدہا ہے وہ اس قبر میں آنے والے معاملات ہیں، جو شہد دیکھا تھا وہ دنیا کی محبت تھی۔ اگر وہ انسان ہوتا عقل مند تو ان سب چیزوں سے بچنے کی تدبیر کرتا، لیکن وہ دنیا کی محبت میں جب گرفتار ہو گیا تو ان سب چیزوں نے اس کو اچک لیا۔ آقا کریم علیہ السلام اس مثال کو بیان فرمانے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کبھی دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دینا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح مشرک ہو جاؤ گے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم جنازہ دیکھیں، جب ہم ایصال ثواب کی محفل آئے تو ہمارے دلوں میں صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارا بھائی جانے والا چلا گیا، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے۔ وہ قیامت کے منظر کو اللہ کریم نے کیسے انداز میں بیان کیا، ذرا قرآن کو ہم اس انداز سے تو پڑھتے ہیں، صرف رٹا رٹایا بچوں کو پڑھا دیا، اور کوئی ہم نے باقاعدہ طور پر قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، زیادہ کیا تو بچے کو حفظ کروا دیا، لیکن اصل علم جو قرآن اور حدیث کا ہے اس سے کوسوں دور ہے۔ کیا قرآن نے صرف اور صرف میلاد کی 4 آیتیں آئی ہیں؟ کیا ہر مسلک والا اپنے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی 4 آیتوں کا حافظ بنا بیٹھا ہے؟ کوئی میلاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں تھا، کوئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تبلیغ کرنی چاہیے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا قرآن تو ایک آفاقی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، وہ پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت بن کر آئی ہے، وہ تو قیامت کا منظر بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کیا قرآن کو کبھی اس تناظر میں بھی دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جس زمین ہلنے لگ جائے گی۔ آج جس زمین پر آرام سے ہم بیٹھے ہیں، جس زمین اچانک ہلنے لگ جائے گی، پھر ہوگا کیا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین میں جتنے خزانے دفن ہیں زمین سب کو اگل دے گی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے سامنے وہ ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوگا جو اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹ کر حاصل کیے ہوں گے، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے آگے پڑا ہوگا جو ناجائز طریقے سے اس نے حاصل کیا ہوگا۔ پھر آقا کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ ہائے اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، حسرت کر رہا ہوگا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ جب قیامت کا منظر بیان کرتے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں تر ہو جایا کرتی۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام آخرت کا منظر پیش کر رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، قیامت والا دن اتنا خوفناک ہولناک دن ہوگا، ہم ننگے میدان محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ کی چیخ نکلتی ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
उस दिन तो फिर हसरत वाला दिन होगा, परेशानी और नदामत वाला दिन होगा कि एक दूसरे को हम नंगे देखेंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा उस दिन किसी को किसी की तरफ देखने की जुर्रत नहीं होगी, तमाम की आंखें उस्मान की तरफ लगी होंगी। हमारे साथ मुआमला क्या होने वाला है? वो सहाबा जो पक्के जन्नती हैं वो भी इतना रोया करते थे आखिरत की बातें सुनकर, लेकिन आज हमने जन्नत को बहुत सस्ता समझ लिया है। चंद रेडीमेड नात खानों के पीछे चलकर हमने यूं समझ लिया हम इश्क़े रसूल की आखिरी मंजिल पर हैं, हम तो बस पक्के जन्नती हैं। जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह करीम ने फरमाया, हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वदर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना मअहू। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? हालांकि अगलों की कहानियां नहीं सुनी कि कैसे उनको हला के मैंने रख दिया, कि अगलों को कैसे मैंने आजमाइश में डाला, मुश्किलात में डाला। इतनी आजमाइशें आई, इतनी मुश्किलात आई। जो रसूल बड़ा साबिर और शाकिर होता है, उस वक्त का रसूल भी पुकार उठता कि या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। इतनी बड़ी सख्तियां आजमाइशें तो अभी हम तक आई नहीं। हमने तो जन्नत 2 मंजिल आगे समझ रखी है। हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरा करते इतना ज़ारो के तार रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती। वो उस्मान गनी जो अशरा मुबशरा में भी जिनका नाम है, आका करीम ने कई दफ़ा उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। जो पक्के जन्नती हैं, जो उनके जन्नती होने में शक करे वो भी काफिर है। वो भी इतना ज़ारो की तार रोया करते थे और कहते थे कि यारो ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, अगर ये कामयाबी से तय हो गई तो आखिरत वाली सारी मंजिलें आसानी से तय हो जाएंगी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। फिर उस दिन पर गौर कर जब तू हसरत के साथ कहेगा कि इसको क्या हो गया। हर कोई अपने पसीने में शराबूर होगा, अपने पसीने में गोते खा रहा होगा। किसी का पसीना उसके पाँव तक होगा, जो ज्यादा गुनाहगार होगा उसका पसीना उसके घुटनों तक। फिर बढ़ता बढ़ता कोई ऐसे बदबख्त भी होंगे जो अपने पसीने में गोते खा रहे होंगे। फिर आगे क्या होगा? अल्लाह करीम ने फरमाया, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इतना बड़ा नदामत वाला दिन होगा कि जमीन बोल बोल कर खबरें दे रही होगी। आज अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर बड़ा आपके सामने मोमन बना बैठा हूँ और आपके अल्लाह ने पर्दे रखे हैं। अंदर खाते पता नहीं हम कितने ऐबों वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारा भरम रखा हुआ है। उस दिन क्या होगा जब सबके सामने हमारे भरम खुल जाएंगे। आका करीम भी वहाँ मौजूद होंगे, हमारे माँ बाप मौजूद होंगे, सबके सामने हमारे गुनाह खोल खोल के रख दिए जाएंगे। उस दिन फिर होगा क्या? अल्लाह करीम फरमाता, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। हम उनके जो जुबान है उस पर मोहर लगा देंगे, वो मुंह से कुछ बोल नहीं सकेगा। व युकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, पाँव बोलकर गवाही देंगे कि हम क्या पाप करते रहे। हाथ बोलकर गवाही देंगे। जमीन का वो टुकड़ा बोलकर गवाही देगा कि या रब्बल आलमीन ये फला फला गुनाह का काम मुझ पर किया करता था। हाय हसरत वाला दिन होगा। उस दिन के आने से पहले पहले उस दिन की तैयारी करनी चाहिए। आज हम यहाँ पर मोमन हैं, आज हम यहाँ पर हमारे अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। जरा गौर तो कर, हम चंद 100 बंदे बैठे हैं, चंद आदमी बैठे हैं। अगर बाहर से कोई पुलिस वाला आए, किसी आदमी को उठा कर ले जाए और कहे कि बदबख्त चोरी करके तू यहाँ पे बैठा है, हम सब पीछे मुड़ मुड़ कर उसको देखेंगे। जरा गौर कर, अल्लाह करीम सूरह यासीन में फरमा रहा है, वमताजुल यौमा युहल मुजरिमून, कि ऐ मुजरिमों आज के दिन अलहदा हो जाओ। जब सारे इकट्ठे खड़े होंगे, मुजरिम
मुजरमों को अलहदा होना पड़ेगा। जब मुजरम अलहदा हो रहे होंगे, हर कोई मुड़ मुड़ कर देख रहा होगा कि ये फलां बंदा भी मुजरमों की सफ में जा रहा है, फलां बंदा दुनिया में तो बड़ा नेक था, ये भी मुजरमों की सफ में जा रहा है। एक सहाबी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सूरह यासीन की इस आयत पर पहुंचते तो आगे पढ़ने की उनमें ताकत ही ना होती, यहाँ पढ़ते रहते, बार बार इस आयत का तकरार करते रहते, वम्ताज़ुल यौमा युहल मुजरिमून, वम्ताज़ुल यौमा युहल मुजरिमून। या रब्बल आलमीन, कैसा दिन होगा जब हमको अलहदा कर दिया जाएगा, मुजरमों को अलहदा कर दिया जाएगा। कितना वो हौलनाक दिन होगा, कितना वो हौलनाक दिन होगा। हमारी जुबानों पर भी मोहर होगी, हमारे हाथ बोल कर बता रहे होंगे, हमारे पाँव बोल कर बता रहे होंगे, जमीन का टुकड़ा बोल कर बता रहा होगा। उस वक्त इतना हसरत और नदामत वाला दिन होगा। उस दिन के आने से पहले पहले उस दिन की हमें तैयारी करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने फिर उस दिन की तर्जमानी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर एक इस्तिगासा लिखा है। आप फरमाते हैं, तू गनी अज़हर दु आलम मन फकीर, तू गनी अज़हर दु आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर। या रब्बल आलमीन, तू गनी है, या रब्बल आलमीन, तू तो गनी है, मैं फकीर हूँ। तू गनी अज़हर दो आलम, दोनों जहां का तू बादशाह है और मैं फकीर हूँ। क्या करना है? रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, क़यामत वाले दिन तू मुझे बगैर हिसाब के बख्श देना, पर्दे पर्दे में ही मेरा हिसाब कर देना, वहाँ पर मेरे ऐब न खुलना। फरमाने लगे, आगे फरमाते हैं, अज निगाह वर तू मी बेनी हिसाबम नागजीर, अगर मेरा हिसाब लाजमी देखना हो, मेरी जिंदगी का रजिस्टर खोलना पड़ जाए, अगर मेरी जिंदगी की किताब को वाक़िअतन खोलना हो, तो फिर या रब्बल आलमीन क्या करना? अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, के आका करीम की नज़रों से दूर ले जाकर करना, ताकि मैं अपने करीम आका के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। वो लजपाल करीम आका जो गारों में हमारे लिए जा जा कर रोया करते थे, वो आका करीम अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार होते हैं तब भी उम्मत की फिक्र, दुनिया में तशरीफ लाते हैं तब भी उम्मत की फिक्र, गारों में जाते हैं तब भी उम्मत की फिक्र, दुनिया को छोड़ने लगते हैं तब भी उम्मत की फिक्र। कितनी उम्मत की फिक्र, और आज हम उम्मती जो हैं वो आका करीम से कितनी वफा कर रहे हैं, कितनी फिक्र है। जब इजराइल आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ इजराइल तू बता कि मेरे जो उम्मती हैं उनको तकलीफ कितनी देगा, मौत के वक़्त कितनी तकलीफ देगा। अब इजराइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं जिसको सबसे कम तकलीफ देता हूँ, सबसे थोड़ी तकलीफ देता हूँ, वो बेरी का दरख्त हो, बेरी के दरख्त का एक छापा पड़ा हो, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाला जाए, एक तन से पकड़कर खींचा जाए, जिस तरह कपड़े का तन जुदा हो जाता है, जिसको मैं सबसे कम तकलीफ देता हूँ उसको इतनी तकलीफ